Hello students, today we are going to learn about the tenses. Tenses which are the base of English grammar and are compulsory to learn about if you want to speak perfect English. Until or unless you learn the rules of tenses, you will never be able to speak perfect English. Plus, many of the topics of the grammar will never be clear to you. There are so many topics for which you need to learn the tenses first. For example, active passive, direct indirect. So many such topics are there in grammar for which first of all you need to know the rules of tenses. So let's begin. Well, there are 12 kinds of tenses. Main are 3. Many of you might be knowing this already. Present, past and future, and rest are the parts of those main 3 tenses. How? Let's see. Simple present tense. This is simple present tense and rest 3 are the parts of this present tense, like present continuous, present perfect and present perfect continuous. Next comes past tense, simple past tense, and next 3 are again the parts of this past tense, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. And next comes future tense. Rest 3 are again the parts of this main tense, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. So basically there are 12 kinds of tenses and each tense has its own rules. As we all know, present describes the time which is going on currently. जो अभी चल रहा है टाइम उसको हम present बोलते हैं. Past, the time that has gone, that is over, जो जा चुका है, जो बीत चुका है. Future, the time to come, जो अभी आने वाला टाइम है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं. तो अब ऑल दीज टाइम्स, ये जो प्रेजेंट वाला है या पास्ट वाला है या फ्यूचर वाला है, इन तीनों टाइम के बारे में अगर हमने कोई सेंटेंस बोलना है, कोई बात करनी है, तो हाउ डू वी स्पीक द सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? फॉर दैट वी नीड टू नो द रूल्स. सो टेंसेस contain the rules which enable us to speak perfect sentences related to present, past and future. Let's begin with first kind of tense, that is simple present. But before you learn the rules of the tenses, I want you to learn the formation of the sentences, because in every tense I am going to teach you 3 kinds of sentences. अब जनरली जब हम बात कर रहे हैं, करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी बात करते हैं, तो जो सेंटेंसेस बोलते हैं हम कौन से बोलते हैं? या तो वो स्टेटमेंट होता है, या वो नेगेटिव होता है, या फिर इंट्रोगेटिव होता है. जब हम बात करते हैं किसी से, या तो ऐसे सिंपल लाइन बोलते हैं, या फिर हम कोई नेगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं, या फिर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं. तो अब हर एक टेंस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये 3 टेंसेज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तीनों टेंसेज के क्या, सेंटेंसेज के क्या क्या रूल्स हैं, आपने कैसे लिखना है वो, या कैसे बोलना है सेंटेंस, वो मैं बताऊंगी. हाउ डू वी स्पीक स्टेटमेंट सेंटेंस, हाउ डू वी स्पीक नेगेटिव सेंटेंस एंड हाउ डू वी स्पीक इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर टेंसेज. नाउ ईच ऑफ these sentences has their own formation. If you have learned the formation of all these 3 sentences, rules of the tenses will be very easy to learn. एक बार आपने ये सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीख ली तो फिर जो रूल्स हैं उनको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा. हाउ? लेट्स सी. फर्स्ट सेंटेंस, as I told you, 3 kind of sentences we are going to discuss in every tense. First one would be statement sentence, जो simple line होते हैं, जो simple बात करते हैं, जैसे I go to school, I eat my food, the girl dances, the boy is singing. These kind of sentences, statement sentence. अब इनकी formation क्या होती है? सबसे पहले इन sentences में आता है subject. Subject is a word that comes in the very beginning of the sentence, एंड समथिंग और समवन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और इसको हम प्लेस करते हैं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में. एंड आफ्टर दैट कम्स हेल्पिंग वर्ब. नाउ व्हाट इज दिस हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ड दैट वी यूज अलॉन्ग विद द मेन वर्ब. कोई भी ऐसा वर्ड जो हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, this is the list of helping verb. Is, am, are, was, were, has, have, had,
will, shall, would, should, can, could, must, might, ought to. Sometimes do, does, did also work as helping verbs. So these are the words which we use along with the main verbs. That's why we call these words helping verb. तो स्टेटमेंट सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब. अब व्हाट इज वर्ब? एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब. किसी भी सेंटेंस में, स्टेटमेंट सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट कम्स द हेल्पिंग वर्ब एंड देन कम्स द मेन वर्ब, द एक्शन वर्ड जो काम कर रहे हो. कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें एक्शन दिखा रहा हो वो आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. एक तो ये होती है इसकी फॉर्मेशन सेंटेंस की, सब स्टेटमेंट सेंटेंस की, और दूसरी फॉर्मेशन क्या होती है सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब. देयर आर ओनली टू टेंसेस इन विच आफ्टर सब्जेक्ट directly we will be using main verb. दो सेंटेंसेस हैं सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट ऐसे दो टेंसेस हैं जिनमें जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज हो जाएगी. हमने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है. एंड आफ्टर दैट वुड बी ऑब्जेक्ट. Only two tenses are there, simple present and simple past, in which after subject we will be using main verb, but rest of the tenses will have this formation of statement sentence. subject के बाद आएगा helping verb, helping verb के बाद आएगा main verb, and उसके बाद आएगा object. Now every sentence will have its own kind of helping verbs, own kinds of forms of verbs. हर एक टेंस में अलग अलग तरह के हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ होने हैं. अब कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, वही हमने टेंसेस में सीखना है. लिखना हमने यही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. अब अगर आपने ये फॉर्मेशन याद कर ली, आपने जब टेंसेस के रूल्स याद करने, आपको बस यही याद करने की ज़रूरत रहेगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं. फॉर्मेशन हमने यही रखनी है. और जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है वहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद सिर्फ मेन वर्ब लिखनी है. लेकिन अब वो वर्ब की फॉर्म कौन सी लिखनी है, फर्स्ट यूज़ करनी है, सेकंड यूज़ करनी है, वो हमने टेंसेस के रूल्स में सीखना है. नेक्स्ट कम्स द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट. कीप दिस इन माइंड, वी ऑलवेज यूज नॉट अलॉन्ग विद हेल्पिंग वर्ब. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब not will be applied in negative sentence. Do not change the place of helping verb and not in negative. जो not है वो हमेशा helping verb के बाद आएगा. After not there would be main verb, जो action word होगा वो आएगा, and then will be object. नेक्स्ट कम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई भी टेंस का जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होंगे, वो जो हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कहाँ आ जाता है, सबसे पहले, और जो सब्जेक्ट होता है वो चला जाता है हेल्पिंग वर्ब के पीछे. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब देयर वुड बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, एंड आफ्टर दैट वुड बी द ऑब्जेक्ट. This is the formation of interrogative sentence. Now many of you will be confused about this word object also. I have explained what is subject, what is helping verb, and what is verb. But what is the object now? Let me explain this word object also. Whenever you speak any sentence till verb, कोई भी sentence जब आप verb तक बोलते हो और वो वर्ब तक बोलने के बाद अगर आपके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज होता है और आपको लगता है कि ये वाला जो सेंटेंस है वर्ब तक बोलने के बाद अधूरा है, इसके बाद कुछ ना कुछ वर्ड आना है, वो जा तो नाउन होगा या प्रनाउन होगा, उस नाउन या प्रनाउन वो जो आंसर आएगा वर्ब तक बोलने के बाद, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में उठा उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. आई विल एक्सप्लेन यू. For example, let's take this sentence, the boy flies. The boy flies. Here the boy is the subject. लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं तो the boy क्या है, सब्जेक्ट है. flies कर क्या रहा है, वो एक्शन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, कौन सा काम हो रहा है, उड़ाने का. तो flies क्या है, वर्ब.
आई टोल्ड यू टू स्पीक द सेंटेंस टिल वर्ब ओनली, हमने सिर्फ वर्ब तक ये सेंटेंस बोला है. द बॉय फ्लाइज. नाउ व्हेन यू स्पोक दिस सेंटेंस, सम क्वेश्चन अरोज इन योर माइंड, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके माइंड में उठा. अगर मैं ये सेंटेंस किसी के सामने बोल रही हूँ, द बॉय फ्लाइज, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, ही और शी माइट आस्क मी, क्या लड़का उड़ाता है क्या, ये क्वेश्चन उठा. अब इसका आंसर क्या आएगा अगर मैंने बोला द काइट, द बॉय फ्लाइज द काइट. तो इसके जब हमने वर्ब तक बोला और उसके बाद जो हमारे माइंड में क्वेश्चन उठा और उस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया, द काइट, एंड द काइट इज द ऑब्जेक्ट. So any sentence which we speak till the verb, and after speaking that sentence till verb, if some question arises and the answer to that question would be the object. यहाँ पे verb तक बोलने के बाद हमारे मन में जो question उठा था क्या, what, the boy flies what, और what का आंसर क्या आया, the kite. So the kite is the object. So these were the formation of the sentences which you need to learn before learning the rules of the tenses. Next we are going to begin with the rules of the tenses.